Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazingly good. So I am making this video after almost 2 weeks because I was so busy and I did not really get time to make any YouTube vlog. Okay, so people who are following me on social media, which is my Instagram and Facebook, they already know that I've recently been called back by my airline, and I have again joined Air Arabia as a flight attendant, which is very good. I'm very happy about it. Now, those of you who are new to my channel, my name is Monisha and I live here in UAE. And if you like my videos, please do share and subscribe to my channel. So without wasting any time, let's talk about what is happening in the aviation industry. And I wanted to also give you a few life updates which are happening. So guys, last time when I made a video regarding my new job as immigration consultant, you all really liked it. And I got more than 2,000 views on that video, which is the first time I got so many views. So I thought, why not also talk about this new job which I got as a flight attendant, been called back by my airline. Okay, now talking about the aviation industry, yes, it is booming again. Almost after 1 year, exact, to be very honest, to be precise, exact after 1 year, my airline has called me back. And not everyone, there are very few people, 13 of us, who have been called back, and they wanted us to start like as soon as possible. So we joined within, I would not even say 10 days. It was just 3 to 4 days. They sent us the contract and everything was done. Training was scheduled. So we started. Now, there are different trainings when you come back to work, like especially in the aviation industry. When you're already flying as a cabin crew or as a pilot, you have to go through recurrent or refresher. Means like every year, to maintain your flying license, you have to pass few exams, safety exams, security exams, emergency procedures. And also when people are on maternity, they return back to work. So that is a different training. And we also have conversion training, wherein you learn about different types of aircraft or different families of aircraft. So this training was a refresher plus a conversion training for us, basically return to work. So it was just a 15 days training wherein we had to do a fast track course about safety equipments, emergency procedures, standard operating procedures, about the aircraft, first aid, security, survival, everything all in 15 days with exams, with everything. Okay. Now how this training works, a lot of people, like basically they have this mentality that as a cabin crew, you only learn about service, which is basically food on board. You sell that, or maybe you serve that on board, and that is how the training works. But no, it is not the case. So usually what happens is, when you join the airline for the first time, the initial training is about 1.5 to 2 months, wherein you get a deep idea about all these things. But since we all of us were flying from a very long time, like personally me, I was flying from last 8 years with 3 different airlines. So we just had to go for this 15-day training. Okay, 15-day training basically means that maybe you have crossed above 6 months but less than 18 months. So I was without the flying duty for almost 1 year. So that is why we are doing this kind of training. This was with the special approval of GCA, which is the Civil Aviation Authority. So it is as per them. Okay. Now what happens in this training is, like I said, we have to go through so many procedures about the equipments and everything. So the first topic that we learn is standard operating procedures. Now every airline has different standard operating procedures when it comes to opening the door, when it comes to arming the door, when it comes to in emergency procedures, like when you, how to say the commands, the lines are different, the vocabulary is different. So all of these things we had to learn about. Okay, and we also have to remember it, because at the end of the day, at the end of the module, you also have to give exams for that. By the way, people who are watching my videos for the first time, and if you want to become flight attendant or a cabin crew in future, do watch the video till the end, because I will be giving you all the information about how this training works, so that you will have a better idea during the interview and during your actual training of the airline. Okay, now talking about SOPs, which means standard operating procedures. Like I said, every airline has different standard operating procedures, but there are few procedures which are same for all the airlines. Like if I talk about the timings as in case
this is for people who drink. So basically, if you are drinking and if you have a flight after 10 hours, you are illegal for the flight, because the minimum gap that you have to give between your flight and your alcohol consumption is 12 hours. So you have to remember that. Now, if I talk about blood donation, so if you are very active in giving and donating blood, you have to make sure that you give a gap of 24 hours between your flight and between your blood donation again. Third thing, if you're going for deep sea diving, you have to maintain a gap of 48 hours. So guys, these are the small things that you have to remember. Now you're carrying infants. You have to remember how many infants are allowed in that particular aircraft that you're flying on, because हर एयरक्राफ्ट का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है. कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कितनी सीट्स होती हैं उस पर, तो उसी के हिसाब से आपके प्रोसीजर्स भी चेंज हो जाते हैं. ठीक है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई एयरलाइन कैरी 20 इन्फेंट्स इन A320. ओके, A320 इज वन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है 168 पैसेंजर्स. सो 168 प्लस 20 इन्फेंट्स, और उसी के हिसाब से आपको इन्फेंट सीट बेल्ट भी कैरी करनी है एंड एक्सटेंशन सीट बेल्ट भी कैरी करनी है. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं. अब जैसे यूएई, हम गल्फ की बात करें तो यहाँ का नेशनल बर्ड क्या है? फैल्कन. सो आप कितने फैल्कन कैरी कर सकते हो? तो हमारी एयरलाइन में यू कैन ओनली कैरी 30 फैल्कन्स. अच्छा, इसमें बेबी फैल्कन्स भी होते हैं, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा, बट ऑफकोर्स अनलिमिटेड है. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं विच यू हैव टू रिमेंबर, लाइक if I talk about pregnant ladies, so below 28 weeks, above 32 weeks, above 36 weeks, you have to remember everything. क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तीनों चीजों के लिए, सिंगल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं. तो ये तो बात हो गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की. अच्छा, वीडियो के साथ साथ मैं आपको जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं, आई विल ऑल्सो अटैच थोड़ी सारी क्लिप्स ट्रेनिंग की, जो आप साइड में देख सकते हैं. जैसे इमरजेंसी प्रोसीजर्स में हमें स्लाइड भी करना होता है. स्लाइड क्या होता है कि जैसे मान लो कोई इमरजेंसी हो जाती है, अब आप ऐसी जगह पे क्रैश लैंडिंग हो जाती है जहां पे स्टेयर्स नहीं आ सकती, रैंप स्लाइड नहीं आ सकती, तो आप क्या करोगे? आपको एयरक्राफ्ट के अंदर की जो इनबिल्ट स्लाइड है वो ओपन करनी पड़ेगी, और उसका भी डिफरेंट प्रोसीजर होता है. आपको डोर जो है वो आर्म पोजीशन में खोलना पड़ता है. आर्म पोजीशन में खोलोगे तो ही स्लाइड इन्फ्लेट होएगी. तो ये आप साइड में अभी आप देख रहे होगे कि वो स्लाइड से हम लोग उतर रहे हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस होती है. एवरी 5 years जब आपका लाइसेंस वैलिड है, एवरी 5 years आपको डिचिंग के लिए भी जाना पड़ता है. डिचिंग मतलब कि मान लो आपने कैप्टन सली देखी होगी ना मूवी, तो उसमें दिखाया है दैट इमरजेंसी की वजह से उनको बर्ड स्ट्राइक हो गया या कुछ भी रीजन हो गया, आपका इंजन फेलियर हो गया और आपको पानी में लैंड करना पड़ा है, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे या आप पैसेंजर्स की कैसे देखभाल करोगे? Because guys, remember, at 30,000 feet or 35,000 feet, you don't have doctors, you do not have firefighters, you don't have nurses, you have no one except us. So we are the only one who can take care of you. That is the reason we go through all these emergency procedures, so that in case anything happens, we are there to take care of you and we're there to help you. Okay, so do respect us फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. अच्छा, बाय द वे, मैं बहुत लोगों से ऐसे सुनती कि यू नो आप लोग करते क्या हो, आप लोग सिर्फ सर्व ही तो करते हो. एब्सोल्युटली राइट, हम लोग सिर्फ सर्व ही करते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि सर्व करते हुए अगर आप खाने पे चोक करने लग जाओगे ना, और जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, गॉड फॉरबिड, तो वो चोकिंग की भी हम लोग ही हेल्प करेंगे, है ना. अब जैसे ये भी मुझे सुनने में आया दैट व्हाट कैबिन अटेंडेंट्स डू, दे जस्ट पुल द ट्रॉलीज. You're absolutely right. We just pull the trolleys. But you even know that trolley is 100 kgs, Karen? No, you don't know. So yeah, इतनी सारी चीजें होती हैं. And also, जैसे मैं डॉक्टर का बोलती हूँ या नर्सेस का बोलती हूँ, हम लोग को चाइल्ड बर्थ सिखाया जाता है कि एक बेबी, इन केस प्रेग्नेंट लेडी आती है, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं बाद में कि अगर अब वो अपनी वीक से ऊपर है, मतलब जितना रिक्वायर्ड वीक अलाउड है, अगर उससे ऊपर है, और अगर इन केस कुछ गलती हो जाती है तो वो हमारे पर आ जाएगा नाम, इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं. बट प्रेशराइज कैबिन होता है, तो उसकी वजह से कोई भी इमरजेंसी हो सकती है. तो इन केस अगर प्रेग्नेंट लेडी लेबर में जाती है तो हम लोग को चाइल्ड बर्थ करना भी सिखाते हैं. इनफैक्ट अगर हार्ट अटैक वगैरह आता है या कोई फेंट हो जाता है, विच इज वेरी नॉर्मल, तो आपको सारी मेडिसिन पता होनी चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट करना है. ऑक्सीजन देना इज वेरी नॉर्मल टू द पैसेंजर्स, बिकॉज लाइक आई सेड, फेंटिंग इज वेरी नॉर्मल. लोग खाना नहीं खाकर आते फ्लाइट पे, प्रेशराइज कैबिन में आ जाते हैं, एंड देन दे फील नॉशिया एंड एवरीथिंग. सो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं. अच्छा, इसके बाद आता है आपका इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट्स एक या दो नहीं होते, देर आर अराउंड 10-12 इक्विपमेंट्स दैट यू हैव टू लर्न अबाउट.
उनका प्री फ्लाइट चेक, उनका ऑपरेशन, आफ्टर यूज। पहले मैं बात करती हूँ इक्विपमेंट्स की, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो नाउ इक्विपमेंट्स, अब इसमें आता है फायर एक्सटिंग्विशर, ऑक्सीजन बॉटल, पीबी मतलब कि प्रोटेक्टिव ब्रीदिंग इक्विपमेंट जो स्मोक के टाइम पे क्रू को पहनना होता है। देन यू हैव फ्लैश लाइट, देन यू हैव एमआरटी। एमआरटी मीन्स मैनुअल रिलीज टूल। इन केस डीकम्प्रेशन होता है और आपका ऑक्सीजन मास्क का जो पैनल है वो नहीं खुलता, तो एमआरटी की हेल्प से आप वो पैनल खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट एड किट, EMK, इमरजेंसी मेडिकल किट, जो बाय द वे सिर्फ डॉक्टर्स यूज कर सकते हैं इन केस अगर वो फ्लाइट पर हैं, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट अ क्रू कैन ऑल्सो यूज विद कैप्टन्स परमिशन, ठीक है। अब आता है इनका प्री फ्लाइट चेक, ऑपरेशन और आफ्टर यूज। तो आपने सुना होगा कि क्रू की रिपोर्टिंग थोड़ी सी पहले होती है, तो हम लोग एयरक्राफ्ट में जल्दी जाकर लोगों के लिए खाना नहीं प्रिपेयर कर रहे होते, हम लोग बेसिकली प्री फ्लाइट चेक्स करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने चेक्स प्रॉपर्ली नहीं करोगे और अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई 30,000 फीट पे और वो चीज काम नहीं करेगी, जैसे मान लो स्मोक हो गया या किसी ने स्मोक करके फायर लगा दी, कुछ भी हो गया, तो अगर आपका फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहा होगा, आपने उसकी एक्सपायरी चेक नहीं करी, आपने उसका सील ही चेक नहीं करी, तो इट विल नॉट वर्क, राइट। इसीलिए प्री फ्लाइट चेक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आपका प्री फ्लाइट चेक ठीक से नहीं हुआ तो मतलब आपकी पूरी फ्लाइट की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि वो जाएगा रिपोर्ट में ऑफ कोर्स, और अगर कुछ गलती हो गई इट विल बी यू, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी टर्मिनेटेड। सो ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। अच्छा, ऑपरेशन भी पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ चेक कर लिए और आपको ऑपरेशन ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है हाउ टू यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर, और आपको पता ही नहीं है लोग फेंट हो गए हैं और आपको पता ही नहीं है ऑक्सीजन कैसे देना है। सो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट हाउ टू गिव ऑक्सीजन प्रॉपर्ली। फ्लैश लाइट यूज करनी आनी चाहिए, उसका भी प्री फ्लाइट चेक होता है। फर्स्ट एड किट, कौन कौन सी सील लगती है, अगर मेडिसिन खत्म हो जाती है, मेडिसिन रह जाती है उसमें, तो वो कौन सी सील लगती है, उसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं, क्या क्या मेडिकेशंस अवेलेबल है, वो देना आना चाहिए। CPR वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को हार्ट अटैक आता है, एंजाइना आता है, तो हम लोग को CPR देना, चेस्ट कंप्रेशंस प्लस रेस्क्यू ब्रेथ्स देना भी सिखाया गया है विद द हेल्प ऑफ AED। AED होता है डिफिब्रिलेटर, जिसकी हेल्प से हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा मूवीज में लोगों को शॉक जाते हैं हार्ट अटैक के टाइम, तो वो भी सिखाया जाता है हम लोगों को। तो ये सारे इक्विपमेंट्स है जिसके बारे में आप पढ़ते हो। नाउ थर्ड थिंग, एयरक्राफ्ट। बेसिकली किस एयरक्राफ्ट पे आप फ्लाई करने वाले हो, तो डिफरेंट एयरलाइन डिफरेंट एयरक्राफ्ट यूज करती हैं। फॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट पे फ्लाई किया बिकॉज ऑफ एतिहाद में वी वर फ्लाइंग ऑन 7 डिफरेंट एयरक्राफ्ट, 380, 787, 340, 600, 330, 200, 330, 300, 319, 320, 321, so many aircrafts, 777, 200, 777, 300. बट इफ आई टॉक अबाउट एयर अरेबिया में एक ही फैमिली के 2 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट है, विच इज 320 एंड 321। दोनों की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है और दोनों की डिफरेंट ट्रेनिंग होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कॉन्फ़िगरेशन। सो 320 में हमारी एयरलाइन में देयर आर 168 पैसेंजर सीट कैपेसिटेशन एंड 321 में 215 की कैपेसिटेशन है। अब इसी हिसाब से 215 का मतलब कि लंबा एयरक्राफ्ट हो गया, तो उस हिसाब के आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो डिफरेंट जगह पर होंगे और ऑफकोर्स ज्यादा होंगे, तो आपको वो चीजें याद रखनी पड़ती हैं। यू हैव टू रिमेंबर कि अगर 320 है तो मेरा ब्रीफिंग टाइम 1 घंटा पहले स्टार्ट होगा फ्लाइट टेक ऑफ से, और अगर आपका 321 है तो उसके लिए डिफरेंट टाइम होता है, आपको आपकी रिपोर्टिंग थोड़ा सा और जल्दी होती है क्योंकि उसमें आपको इक्विपमेंट ज्यादा होते हैं, क्रू ज्यादा होता है, तो आपको उसके हिसाब से चेक्स करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब बात करते हैं हम SEP मतलब कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स। लाइक आई सेड, स्मोक हो सकता है, फायर हो सकता है, डिचिंग हो सकता है, क्रैश लैंडिंग हो सकता है। आप कैसे सर्वाइव करोगे, तो आपको सर्वाइवल के बारे में भी पढ़ना पड़ता है कि मान लो क्रैश लैंडिंग हो गया, तो जंगल में क्रैश लैंडिंग हो गया तो उसमें क्या क्या सर्वाइव करोगे। अच्छा, इस वीडियो में बात करते हुए मैं आपको साथ में एक वीडियो डालूंगी अपनी ट्रेनिंग की, जिसमें हम लोग जंगल सर्वाइवल के लिए भी जाते हैं और उसकी भी ट्रेनिंग होती है बाय द वे। एंड इन केस अगर बर्फ वाली जगह पर सर्वाइवल करना पड़ेगा तो उसमें कैसे होता है, तो उसकी भी अलग से ये वीडियो आप देख सकते हैं, आएगी साथ में। ये सारी चीजें होती हैं। और जैसे मैंने बोला कि आपको ऐसी जगहों पे ना रैंप होगा ना स्टेयर्स होगा, तो आप इवैक्यूएट कैसे करोगे एयरक्राफ्ट से। तो बेसिकली जो एयरक्राफ्ट के अंदर इनबिल्ट स्लाइड होती है उससे इवैक्यूएट करते हैं, और क्रू मेक श्योर कि उसकी ट्रेनिंग अच्छी से उनको कमांड देनी आए, क्योंकि मान लो क्रैश लैंडिंग हुई है, इतना ज्यादा शोर मच रहा है, सारे पैसेंजर्स चिल्ला रहे हैं, तो आपकी जो कमांड्स हैं इतनी ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए कि वो
सब लोगों को सुनाई दे रही हैं और वो टाइम पे इवैक्यूएट कर जाएं, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट से निकलने का टाइम सिर्फ 90 सेकेंड्स का होता है, तो क्योंकि उसके बाद फ्लैश ओवर हो सकता है, राइट। फ्लैश ओवर का मतलब है पूरा एयरक्राफ्ट में ऐसे फायर आ सकता है, फायर बॉल आ सकती है बेसिकली, तो उससे हमें बेसिकली उससे पहले निकलना होता है। फर्स्ट एड की बात हम लोगों ने कर ली है ऑलरेडी, चाइल्ड बर्थ, CPR, फेंटिंग, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में आपको सब लर्न करना पड़ता है, एग्जाम देना होता है, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं बाय द वे, वाइवाज भी होते हैं। वाइवाज में क्या होता है कि वो लोग जो ट्रेनर्स होते हैं, दे ओपन द मैनुअल एंड दे कैन आस्क यू एनीथिंग दैट दे वांट, ओके, विच इज ऑल्सो गुड बिकॉज आपको कुछ भी आना चाहिए, मतलब कुछ भी हो जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करते तो ट्रस्ट मी, वो लोग आपको फ्लाइंग नहीं करने देते। ऑल्सो आपने एग्जाम क्लियर कर लिए, यू आर रेडी फॉर द फ्लाइट, आप फ्लाइट पे जाते हो, कैबिन सुपरवाइजर इज सपोज टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस इन द ब्रीफिंग। अगर आप ब्रीफिंग में आंसर देते हो, दैट इज द ओनली टाइम यू गो फॉर अ फ्लाइट। अगर आप आंसर नहीं देते तो आप फ्लाइट के लिए भी नहीं जा सकते। सो यस, ये भी सारी चीजें होती हैं। सो दिस वॉज द ट्रेनिंग ऑल अबाउट गाइज। हाँ, बाय द वे, डेंजरस गुड आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से डेंजरस गुड्स अलाउड है एयरक्राफ्ट में, कौन कौन से नहीं अलाउड है, उसकी भी अलग से ट्रेनिंग होती है। DGR किट भी अलाउड एयरक्राफ्ट में अवेलेबल होती है, तो इनकेस अगर कोई स्पिलेज वगैरह होती है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। सो हाँ, ये था पूरा 15 दिन की ट्रेनिंग में जो हम लोगों ने सीखा एज इन दोबारा से रिफ्रेश किया, बिकॉज इतने टाइम से हम लोग कर रहे थे तो पता तो था ही, बट देन ऑफ कोर्स एग्जाम दोबारा देने पड़ते हैं टू मेक श्योर दैट वी रिमेंबर एवरीथिंग एंड टू मेक श्योर दैट इन केस समथिंग रॉन्ग हैपेंस वी स्टिल कैन डू एंड हेल्प पीपल. So yes, this is the video all about. So yes, this was the life update that I got my job back as a flight attendant, which I'm very happy about. And this was all about the aviation industry and the training and what happens in the training. If you have any more questions, do let me know in the comment section below and I will be able to help you in all the questions and all the queries in case you are an aspiring cabin attendant. So yes, if you want me to make any more videos regarding any topic, let me also know in the comment section below. Stay tuned for more exciting videos because अब मेरी flight start हो जाएंगी और I will also make more videos like come to work with me. Of course मैं phone aircraft में नहीं ले जा सकती because in uniform हम लोग allowed नहीं होता using a phone. So जाने से पहले का पूरा procedure, वापस आने का, layovers पे जब मैं जाऊंगी तो वो सारा भी start हो जाएगा. So I will make videos about that. Thank you so much for watching the video. Thank you so much for always coming back, liking, sharing and subscribing to my channel. And again, if you're new to my channel, do share and subscribe and I'll see you in my next video. Bye.